हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन आज सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए कॉस्ट ऑडिट के अंदर पेज नंबर 84 के अंदर एक इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड ये है रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स। ओके, तो इसमें क्या है, सी यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल के अकॉर्डिंग टर्नओवर दिया गया है, राइट, एंड ऑल्सो सम फ्यू एडजस्टमेंट्स, राइट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट के अंदर रिकन्सिलिएशन बनाना है, राइट। तो ये है क्वेश्चन given that Ambika Textile Mills produced cloth and fabrics. In addition, they undertook customers' job order for processing of cloth towards optimum utilization of its spare capacity and earn from loan license, right? So, from the following income figures, find out the turnover of the company as per the company's cost record and audit rules. Sales given in lakh, right? Share marketing sales from depot given, export income given, export duty given, income from job processing, then scrap sale and income from loan license operation also given. Second, the financial profit and loss account for the year 21-22 of a company shows a net profit of rupees 29,60,000. During the course of cost audit, it was noticed that the company was engaged in share marketing activity by purchasing goods at 6 lakh and selling it for rupees 7,50,000 after incurring repacking cost of rupees 25,000, राइट। शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके कुछ गुड्स परचेज किए थे रुपीज 6,000 का एंड सेलिंग हुआ है 7,50,000 आफ्टर इनकरिंग रिकरिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 25,000. Then some discarded assets sold off with no scrap value for rupees 90,000. Some renovation of machinery was carried out at a cost of rupees 6 lakh, having a productive life of 5 years, but entire amount was charged to financial accounts, right? So interest was received amounting to rupees 1,40,000 from outside investment. Voluntary retirement payment, that is VRS, of rupees 3,50,000 was not included in the cost accounts. क्लियरली सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर. इंश्योरेंस क्लेम ऑफ प्रीवियस ईयर्स was received to the extent of rupees 2,50,000 but was not considered in the cost accounts. Similarly, opening stock of raw materials and finished goods was overvalued by rupees 2,40,000 and closing stock of finished goods was overvalued by rupees 1,10,000 in the financial account, and donation of rupees 80,000 towards CSR commitment was not considered in the cost accounts. Now we need to do profit as per cost accounts and briefly explain the adjustment if any carry out, right? तो हमको क्या करना है, profit as per financial account already given in question, right? That is 29,60,000, right? So we need to find out profit as per cost account. For that we need to first find out the turnover, consolidated turnover, right? So how to calculate consolidated turnover? See, as per Companies Act 2013, turnover means gross turnover made by the company from the sale or supply of all products and services during a financial year but excluding duties and taxes. टर्नओवर के अंदर सब कुछ ऐड किया जाएगा, सिर्फ ड्यूटीज एंड टैक्सेस को एक्सक्लूड किया जाएगा, राइट, एज पर कंपनी एक्ट 2013. So sales 19,300 already given in question, 19,300. एक सेकेंड. ओके, सेल्स 19,300 ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, गिवन है, बहुत इजी. देन शेयर मार्केटिंग से इनकम हुआ है 1,250 लाख, गिवन इन क्वेश्चन, सो यहां पर ऐड किया जाएगा. देन एक्सपोर्ट इनकम रुपीज 2,100 लाख ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. देन इनकम फ्रॉम जॉब प्रोसेसिंग गिवन 1100. देन स्क्रैप सेल 235 लाख गिवन इन क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, ऐड कर देंगे. इनकम फ्रॉम लोन लाइसेंस ऑपरेशन 560 लाख गिवन इन क्वेश्चन, राइट. तो ये सब ऐड हो जाएगा.
दैट इज राइट। तो ये सब ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,545 लाख टर्नओवर, कंसोलिडेटेड टर्नओवर, राइट। सो टर्नओवर हमको मिल गया है। नाउ वी नीड टू रिकॉन्साइल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड फिनेंशियल अकाउंट फॉर द गिवन financial year. So here profit as per financial account for audited product already given in question, that is 29,60,000 already given in question. The financial profit and loss account for the year 21-22 of a company shows a net profit of rupees 29,60,000 during the course of cost audit. It was noted that यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया गया है, राइट। तो पहले हमको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, दैट इज 29,60,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन लेस करना है इनकम व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। जो इनकम कॉस्ट ऑडिट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा तो वो सब यहाँ पर लेस होगा, बिकॉज फर्स्ट वी सिलेक्टेड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। सो अगर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट चूज किया गया है, दैट इज 29,60,000, तो यहाँ पर इनकम जो कंसिडर नहीं हुआ है कॉस्ट अकाउंट के अंदर, वो सब यहाँ पर 29,60,000 के अंदर ऑलरेडी ऐड हुआ है, राइट। तो हमको अगर रिकन्सिलिएशन करना है एज पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, तो वो सब इनकम को यहाँ पर लेस करेंगे, राइट, इन ऑर्डर टू कम इनटू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, सो फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्या दिया गया है? शेयर मार्केटिंग अंदर प्रॉफिट हुआ है 1,25,000। कैसे हुआ है? सी, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, द कंपनी वाज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ शेयर मार्केटिंग बाय इन्वेस्टिंग या फिर बाय परचेजिंग गुड्स ऑफ ₹6 लाख एंड सेलिंग इट फॉर 7,50,000। तो 7,50,000 से 6 लाख को माइनस कर देंगे। देन ऑल्सो आफ्टर इंकरिंग रीपैकिंग कॉस्ट ऑफ ₹25,000, वो 25,000 को भी माइनस करेंगे। तो शेयर मार्केटिंग से जो इनकम हुआ है वो है 1,25,000, जो कि 29,60,000 के अंदर ऑलरेडी ऐड हुआ था। तो अब यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे इन ऑर्डर टू कम इनटू फिनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट, राइट। देन आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो यहाँ पर सी, सम डिस्कार्ड दिया गया है एडजस्टमेंट के अंदर, सम डिस्कार्डेड एसेट्स सोल्ड ऑफ विथ नो स्क्रैप वैल्यू फॉर ₹90,000। तो ये प्योरली फिनेंशियल इनकम है, प्योरली फिनेंशियल इनकम है। तो अगर प्योरली फिनेंशियल इनकम है तो ये प्रॉफिट के अंदर ऐड हुआ है, तो अब हम अगेन लेस करेंगे इसको, राइट, रिड्यूस करेंगे फ्रॉम फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। तो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट से रिसीव हुआ था इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 1,40,000। इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 1,40,000 फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। ये भी प्योरली फिनेंशियल इनकम है, फिनेंशियल इनकम FI, राइट, प्योरली फिनेंशियल इनकम है। तो फिनेंशियल प्रॉफिट के अंदर श्योरली ये ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे, राइट। तो लेस कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। देन इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम प्रीवियस ईयर रिसीव्ड। तो प्रीवियस ईयर का जो इंश्योरेंस क्लेम हुआ था वो इनकम सब ऐड हुआ है दिस फिनेंशियल ईयर, मतलब करंट फिनेंशियल ईयर के अंदर ऐड हुआ है। तो वो भी प्योरली फिनेंशियल इनकम, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इंश्योरेंस क्लेम of previous year was received to the extent of ₹2,50,000 but was not considered in cost account। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन, मैंने मतलब क्वेश्चन के अंदर फुल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ये सिर्फ फिनेंशियल इनकम है, तो कॉस्ट अकाउंट के अंदर रिड्यूस करना है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी लेस हुआ है 2,50,000 ना, ये आ गया एडजस्टमेंट, ये है टोटल 6,05,000 जो कि हम लोग माइनस करेंगे प्रॉफिट से। देन आता है एक्सपेंसेस which are not considered in cost account। जो एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट के अंदर एलिजिबल नहीं है, वो सबको हम ऐड करना है अगेन इन ऑर्डर टू कम इनटू फाइनल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ओके, सो जो एक्सपेंसेस हुआ है फिनेंशियल अकाउंट के अंदर, वो सब फिनेंशियल प्रॉफिट से रिड्यूस होकर ये है 29,60,000। बट यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो इसलिए हमको जो एक्सपेंसेस फिनेंशियल अकाउंट्स के अंदर कंसीडर किया गया था वो सब अगेन हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड होगा तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, राइट। तो एक्सपेंसेस क्या है? फर्स्ट नंबर 1 डोनेशन टुवर्ड्स CSR कमिटमेंट, राइट। CSR कमिटमेंट
के लिए 80,000 का डोनेशन दिया गया है। वो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन डोनेशन ऑफ ₹80,000 टुवर्ड्स CSR कमिटमेंट वाज नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, ऑलरेडी गिवन इन एडजस्टमेंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, राइट। सो अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो मतलब पूरा फुल टू फुल मार्क मिल जाएगा, राइट। डोनेशन ऑफ ₹80,000 टुवर्ड्स CSR कमिटमेंट वाज नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। तो अगर कंसीडर नहीं हुआ है कॉस्ट अकाउंट के अंदर, दैट मीन्स ये प्रॉफिट फिनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट से लेस हुआ है, तो उसको फिर से हम लोग एड बैक करेंगे। तो डोनेशन टुवर्ड्स CSR कमिटमेंट ये एड बैक होगा 80,000। देन आता है VRS एक्सपेंसेस, दैट इज ₹3,50,000। VRS मीन्स वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है voluntary retirement payment of ₹3,50,000 was not included in the cost account। अगर ये कॉस्ट अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये फिनेंशियल प्रॉफिट के अंदर कंसीडर किया गया है एंड दैट्स व्हाई फिनेंशियल प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एड बैक करेंगे एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट, तो ये आर हो जाएगा 3,50,000, राइट। देन आता है रिनोवेशन 4/5 ऑफ आउटले ऑफ ₹6 लाख, दैट इज 4,80,000। तो जो रिनोवेशन हुआ है यहाँ पर सी हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट सम रिनोवेशन ऑफ मशीनरी वाज कैरी आउट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹6 लाख हैविंग ए प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 5 years, having a productive life of 5 years, but entire amount was charged to financial account, right। तो कोई कुछ रिनोवेशन हुआ था मशीनरी का जिसका कॉस्ट था 6 लाख, जिसका की प्रोडक्टिव लाइफ है 5 years, तो बट एंटायर अमाउंट वाज चार्ज टू फिनेंशियल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, तो 5 years का है, इसलिए हमको ईयरली वाइज 4/5 कैलकुलेट करके हम लोग को एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे एंड सो दैट इट विल बी हेल्प्स टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो रिनोवेशन वर्क 6 लाख का 4,80,000, तो ये आ जाएगा 9,10,000, राइट। तो टोटल जो इनकम जो कि माइनस होना चाहिए था वो है 6,05,000 एंड टोटल एक्सपेंसेस जो कि एड बैक होना चाहिए था वो है 9,10,000। देन आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के अंदर सी यहाँ पर इन एडजस्टमेंट गिवन दैट opening stock of raw material and finished goods was overvalued by 2,40,000 and closing stock of finished goods was overvalued by 1,10,000 in financial account, right। financial account के अंदर क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 2,40,000 ज़्यादा शो किया गया है। अगर 2,40,000 अगर ज़्यादा शो किया जाएगा तो फिनेंशियल प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज होगा तो फिनेंशियल प्रॉफिट रिड्यूस होगा, राइट। अगर एंड में जो स्टॉक है अगर वो ओवर वैल्यूड होगा तो फिनेंशियल प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो फिनेंशियल प्रॉफिट रिड्यूस होगा। अगर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर मतलब इंक्रीज होगा तो फिनेंशियल प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। पर यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 2,40,000 जो कि ओवर वैल्यूड हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1,10,000 सिर्फ इंक्रीज हुआ है। तो इसका जो डिफरेंशियल है 2,40,000 माइनस 1,10,000 नेट में अगर देखा जाए तो 2,40,000 माइनस 1,10,000 दैट इज 1,30,000 ये ओवर वैल्यूड है इन ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो इसलिए जो फिनेंशियल प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया है। तो अगेन हम लोगों को क्या करना है, वो स्टॉक को फिर से ऐड बैक करना है, राइट। वो डिफरेंशियल फिगर दैट इज 1,30,000 को फिर से ऐड बैक करना है, राइट। ये हो गया। अदर कोई एडजस्टमेंट है तो वो इसमें शो करना है। यहाँ पर हमारा अदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो भी दिया गया था वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर मतलब मेंशन कर दिए हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट, इंटरेस्ट इनकम, रिनोवेशन वर्क, एसेट सोल्ड एंड इनकम फ्रॉम शेयर मार्केटिंग, राइट। तो सब कुछ हम लोग कंसिडर कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब कंसिडर करने के बाद ऐड लेस करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है एज पर कॉस्ट अकाउंट दैट इज 33,95,000, राइट। 33,95,000, राइट। तो ये है रिकन्सिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर रिकन्सिलिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट था ग्रुप 1 के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग रिकन्सिलिएशन के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा एंड बहुत ईजी है, स्कोरिंग है एंड ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है,
राइट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 सेमीफाइनल ग्रुप 4 के अंदर हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस बार जो सिलेबस 2022 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो वहाँ पर अप टू मैक्स 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा एंड वो सब बुक्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट। तो हमको क्या करना है, ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी सारे इलस्ट्रेशन दिया गया है बुक्स के अंदर वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो पूरे फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर वन बाई वन एवरी क्वेश्चन को ऐसे ही डिस्कस करके सॉल्यूशन करके अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। डोंट वरी अबाउट ऑल सच थिंग्स एंड सो this is it from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.